हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 फॉर्मल लेटर। स्टेप बाय स्टेप डिस्कशंस की आपने बेसिक से लेके एडवांस तक आपने कैसे लिखना है इस वीडियो में। साथ ही में आप ये सीखोगे सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस कैसे रखनी चाहिए, ग्रामर कैसे यूज करनी है, आपने वोकैबुलरी कैसे यूज करनी है, कोलोकेशंस कैसे यूज करनी है, एंड हाउ टू इंप्रूव योर राइटिंग टास्क 1 फ्रॉम बैंड 5 टू बैंड 7। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि आप किसी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू किसी हॉलिडे में गए थे, लेकिन आपको वहां पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। यू वर अनहैप्पी विद योर स्टे इन दी होटल। जिस होटल में आप रहे थे उसका आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो आपके 3 क्वेश्चंस ये हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है अपने हॉलिडे के बारे में एंड आप कहां पर रुके। सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू मेंशन व्हाई यू आर अनहैप्पी अबाउट द होटल वेयर यू स्टेड, and third point is what you would like the travel agency to do. So the very first thing I would like to mention here is that before you start to write your letter, firstly you have to clearly analyze your letter. You have to understand the meaning of the letter, and after you clearly analyze, it's time to plan your letter. Unless you plan your letter, you will not be able to score even 7 in your writing. So this is the major difference between an 8-band student and a 5-band student. So always try to plan your letter before you start to write it down. I always try to plan my letter first of all. Secondly, you have to do is you have to follow the format that is given to you by the IDP. If you will not follow the format, then also you will not be able to score even 7 in your writing. So firstly, you have to analyze, you have to plan out your letter, and you have to keep care of the format and the structure of your letter as well. And I have always seen many students, they are not planning out the letter. They never plan out, they directly start to write down their letter. So here the biggest mistake they do is not planning the letter. If you will plan the letter, first of all, your mind will be clear. You will have clear ideas that what you have to write in whole letter. Second thing is, if you will spend 2 to 3 minutes in planning out your letter, after that you will need only 10 to 12 minutes to write your letter. So that means in 15 to 16 minutes you can easily write a perfect 7-man letter, only if you will plan out your letter before you start to write it down. So today's lesson is you have to plan out your letter before you start to write it down. So let's look at the sample answer. So the main things you have to focus in the sample is the formation of sentences, vocabulary, collocations, and grammar that I have used in this letter. First, I have written dear sir or dear sir or madam. After that, I have put a sign of comma. So this is very important. This is the formal letter. In case of formal letter, you have to start with dear sir, or you can write dear madam, comma. So after this, you have to leave one line, and after that you have to start with the opening paragraph. Opening paragraph is very important, and in opening paragraph you have to clearly state the purpose of writing your letter, and this is one of the main judgment criteria. So what I have written, I am writing to express my dissatisfaction with the recent holiday I booked through your agency. So this line you have to rephrase it from the question itself. So the question itself was you are unhappy with the holiday which you booked through a travel agency. So that is why I have rephrased it by using with the recent holiday I booked through your agency. You have booked a holiday through some travel agency. So the real holiday I booked through your agency. So on the other hand, you can also use this phrase, I am writing to formally complain about. There are different phrases. After that, you have to mention your experience in brief, in short, in a single short, precise sentence. Unfortunately, that means but or however. Unfortunately, the experience was far below the expectations. The experience was far below the expectations. Right? So the expectations set by your promotional material. Promotional material means the advertisement.
So I have used very good wordings, very good vocabulary. Again, the collocation, the promotion material says that the hotel is very good, but the experience in reality, that was not so good. The experience was far below the expectations. So this is how you have to write the opening paragraph, where you have to clearly state the purpose of writing your letter. After that, again, you have to leave one line, and again, format and structure is very important. And after that, you have to give answer to the bullet point 1, body paragraph 1. So the first question was, say about your holiday and where you stayed. You have to mention about your holidays and आप कहाँ पर रुके, where you stayed. So what I have written is my family and I. Again, this is very important thing. Normally students write I and my family, I and my friend. This is grammatically incorrect. So either in your speaking or writing, you have to use my friends and I, my family and I stayed at Blue Lagoon Resort in Goa from October 5th to 12th, 2024. Where you have stayed, you have mentioned, and अब आपकी holidays कब की थी आपने वो भी यहाँ पे you have clearly mentioned. So while means this is a conditional sentence. While the destination was beautiful, again the past tense, you have to keep care of grammar, each and everything. The hotel we stayed in was highly disappointing. It was highly disappointing. Instead of writing word very, you can write it as very highly disappointing. Very disappointing? No, highly disappointing. This again means the collocation and very good usage of vocabulary and collocations. So in this way, you can write your answer to body paragraph 1. I hope till here I am clear. So the main things you have to focus is on the formation of sentences, sentence structures, and the grammar only. If you will focus on your sentence formations and grammar, then also you can easily score a 7 in your writing module. बुलेट पॉइंट 2 का क्वेश्चन था कि आपको होटल की कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी, इसके बारे में आप कैसे लिख सकते हो. ऑब्वियसली आपने हमेशा मार्जिन के साथ ही शुरू करना है. कभी भी आपने मार्जिन के साथ स्पेस नहीं छोड़नी. बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मेट नहीं पता, तो कभी भी मार्जिन के साथ आपने स्पेस नहीं छोड़नी. हमेशा आपने मार्जिन के साथ लिखना है. अगेन, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर्स counts to your judgment criteria, counts to your band. तो firstly आपको सबसे पहले क्या अच्छा नहीं लगा? The hotel's quality was far below what was advertised. जो advertise किया गया था उससे काफी ज्यादा कम थी. Far below what was advertised. और क्या चीजें अच्छी नहीं थी? The rooms were not properly cleaned. बहुत बेसिक सी आइडियाज है, बेसिक सी बातें होती हैं जिनको आपने लिखना होता है. अगेन, मैंने इसको प्लान किया हुआ था पहले. सो अगर मैंने प्लानिंग करी होती है तो मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको लिखने में. मेरे माइंड में पॉइंट्स थे, मैंने फटाफट उनको पॉइंट्स को बना के लिख दिया. सो आप भी प्लानिंग जरूर करो, बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा राइटिंग टास्क 1 के लिए. तो राइटिंग टास्क 2 का भी कल कंप्लीट सैंपल आएगा. सो टॉकिंग अबाउट दिस सैंपल, नॉट प्रॉपरली क्लीन के बाद कॉमा, एंड. हमेशा एंड के पहले, बट के पहले हमेशा आपने कॉमास लगाने हैं. जहां पर भी आप कंजंक्शन ऐड करते हो, कंजंक्शन ऐड करने से पहले हमेशा आपने कॉमा डालना है. ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको कोई भी नहीं समझाता, लेकिन इनका इम्पैक्ट आइल्स में बहुत ही ज्यादा बड़ा है. सो मेक श्योर टू इंक्लूड दीज एटलीस्ट बेसिक थिंग्स इन योर लेटर इफ योर स्कोर टारगेट स्कोर इज अराउंड 5 or 6. अगर आप इनको बेसिक चीजें भी समझ लोगे तब भी आपके 6 बैंड इजीली आ जाएंगे. तो इसके पहले आपके साथ में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करने वाली हूँ. ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं. इतना अच्छा कमेंट करने के लिए आई एम हाईली ग्रेटफुल. अगर आपको मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लग रही है, सीरियसली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड जो भी आपकी आने वाली डिमांड्स है उन पर जरूर वीडियोस आएंगी. तो एक और स्टूडेंट का ये कॉमेंट है, सिर्फ मेरी वीडियोस देख के दिस स्टूडेंट वाज एबल टू स्कोर 6 in the writing module. तो आपके लिए भी ये वीडियोस काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं. So moving on to today's topic, and despite, again this is the conditional sentence. despite का मतलब होता है बावजूद के या बजाय के. despite multiple request, multiple मतलब काफी बार रिक्वेस्ट करने से के बावजूद भी. अगर आप लिखते हो many times के अलावा आप क्या लिख सकते हो? multiple request. अगेन, जब आप 2 वर्ड्स को यूज करते हो, दैट मीन्स इट बिकम्स द कोलोकेशंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग टास्क, स्पेशली फॉर जनरल ट्रेनिंग. द हाउसकीपिंग सर्विसेज रिमेन्ड इनएडिक्वेट
थ्रू आउट आवर स्टे, हमारे स्टे तक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, मल्टीपल टाइम्स कंप्लेंट करने के बावजूद भी, बजाय भी। तो आप राइटिंग टास्क में कोशिश करो कि एक जगह पर डिस्पाइट वाला सेंटेंस ऐड करने की जरूर कोशिश करो। उसके बाद मैंने कोशिश करी है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐड करने की। How can a hotel of this standard not ensure basic cleanliness and maintenance? कि इतना हाई स्टैंडर्ड का होटल होके आपको बेसिक चीजें भी आप नहीं पूरी कर सकते हो। सो क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐड करने से हमने सेंटेंसेस में वेरिएशन शो कर दी। एग्जामिनर को ये पता है कि हमने वेरिएशन शो करी है, तो हमेशा वेरिएशन शो जरूर करो इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 7। सो द फूड सर्व्ड एडिशनली, मैंने अब क्या किया, द फूड सर्व्ड एडिशनली, जो भी आप फ्रेजेस स्टार्टिंग में लगाते हो कोशिश करो उनको सेंटर में भी लगाओ। सेंटर में का मतलब हो गया आफ्टर द नाउन। द फूड सर्व्ड की मैंने बात करनी थी, फूड सर्व के बाद कॉमा, एडिशनली फिर कॉमा, तो आपका मेन फ्रेज के पहले भी कॉमा आएगा, फ्रेज के बाद भी आपका कॉमा आएगा। इन द होटल वाज सब पार, अगेन मैंने वोकैबुलरी वर्ड यूज किया, सब पार मतलब बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड वैरायटी, दोनों के टर्म्स में जो खाना था बहुत ही ज्यादा मतलब बिलो क्वालिटी था, बिल्कुल ही बेकार था। सो सब पार अगेन दी गुड वोकैबुलरी वर्ड। तो आप ये मैंने प्लानिंग करी हुई थी कि मैंने कौन कौन सी चीजों की बात करनी है, प्लानिंग से मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाता है हमेशा। ट्राई टू प्लान आउट योर लेटर ऑलवेज। तो थर्ड वाला क्वेश्चन था कि आप क्या ट्रेवल एजेंसी को सजेस्ट करना चाहोगे, वो क्या करे। तो अगेन मैंने इसका भी प्लानिंग किया हुआ था, मैंने 3 पॉइंट्स मेरे माइंड में थे। फर्स्ट पॉइंट था गिवन दीज इश्यूज, कि जो भी मैंने ऊपर इश्यूज मेंशन किए उसको देखते हुए मतलब मैंने यूज किया गिवन दीज इश्यूज, वेरी नाइस फ्रेज। आई वुड लाइक योर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, आपकी जो एजेंसी है वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करे कि कहां पर गड़बड़ हो रही है एंड उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ले। आई ऑल्सो सजेस्ट अ पार्शियल रिफंड, कोई आपको फुल रिफंड तो करेगा नहीं, पार्शियल रिफंड फॉर इनकन्वीनियंस वी एक्सपीरियंस्ड, जो हमें इनकन्वीनियंस एक्सपीरियंस करी उसके लिए आई वांट टू रिक्वेस्ट अ पार्शियल फंड, भी 50% मुझे फंड रिफंड वापस मुझे मिले। आई वुड फर्दर अप्रिशिएट इट if you could ensure such problems do not recur for future customers। तो इसके आगे मैंने एक जेंडर सा सेंटेंस और लिखा कि मुझे ये भी अच्छा लगेगा अगर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा से नहीं आएंगी। डू नॉट रेकर, रेकर मतलब क्या हो गया, रिपीट नहीं होंगी। डू नॉट रीअकर फॉर फ्यूचर कस्टमर्स, जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनमें उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आप ऐसा इंश्योर करते हो तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, आई विल रियली अप्रिशिएट इट। तो मेरे माइंड में 3 पॉइंट से, मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए, पार्शियल रिफंड था एंड फ्यूचर कस्टमर्स को ये श्योरिटी मिल जाए कि ऐसी मिस्टेक्स दोबारा नहीं होंगी। सो दिस इज हाउ आप बहुत ही ज्यादा इजीली लिख सकते हो। इसके बाद मैंने एक अनाउंसमेंट और करनी है, सो इसके बाद एंडिंग तक जरूर देखो। अगेन जब आपका BP3 फिनिश हो जाता है उसके बाद भी आपने अगेन एक लाइन को छोड़ना है, उसके बाद यू हैव टू ऐड अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। अगेन ये आता है आपके स्ट्रक्चर में, आपके फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर का फॉर्मेट का अगर आप ध्यान रखोगे तब भी आपके 6 बैंड तो कम से कम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको 7 बैंड चाहिए तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो ग्रामर में मिस्टेक है, जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स भी हो सकता है। उसके बाद अगेन एक लाइन छोड़कर योर्स सिंसियरली कॉमा आपका नेम। सो दिस इज अबाउट द सैंपल ऑफ अ फॉर्मल लेटर। आपने 8 बैंड फॉर्मल लेटर का सैंपल आज सीखा, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीखी, वोकैबुलरी सीखा, स्ट्रक्चर सीखा, फॉर्मेट सीखा एंड आपने सैंपल आंसर सारा का सारा देखा भी आपने कैसे लिखना है। तो अगर आपको जो मैंने यहाँ पे फ्रेजेस ऐड किए, कहीं पर भी मैंने कुछ भी लिखा, मेरे पास बहुत सारी लिस्ट ऑफ फ्रेजेस है जो मैंने इस वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने ये फ्रेजेस वाले टेम्पलेट्स वाली वीडियो नहीं देखी, मस्ट वॉच दिस वीडियो, ये अभी पार्ट 1 है। इसके बाद टेम्पलेट्स वाली और वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगी आपके लिए। सो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव मिला हो, डू गिव इट थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर डेली informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam.